Okay, so now in today's class, we are going to start the list. List is a data structure that is already defined in Python, and it is a very interesting data structure. The thing is that we can store different types of values in list. Okay, say in string, in yesterday's class we have learned string. String में हम लोग क्या store कर रहे थे? We were storing different characters in it. That may be alphabet, that may be in numbers, that may be any special characters, but each and every one was a single alphabet. Each and every element of a string was a single alphabet. Now list is what? List may also contain multiple values at a single time. जैसे कि string में many values था, each and every character was containing a value. So list में भी हम लोग different values store कर सकते हैं and that may be of different type also. मतलब सोचो कि one element in the list is integer, second element in the list is float, third element in the list is a string, fourth element in the list is a list itself. Okay, anything may be there. So that is a list. List को हम क्या करते हैं? We write the list in third brackets. Third bracket means square brackets. Okay. String को हम कैसे लिखते थे? Within double quote या फिर single quote. ठीक है? So now in this class we will learn some defined functions in list. List में जो function already available है Python में वो हम सीखेंगे. ठीक है? We will complete list, string, dictionary and tuple. After that we will do some program using the defined functions. Okay? So let's start. हाँ करेंगे, पहले ये सब कर लेते हैं. नहीं कर पाए? Okay, I will help you, no problem. Okay, see, the first statement is declaring a list. The first statement is declaring a list. L1 is a variable. जैसे कि string भी हम लोग variable में store किए थे ना पिछले क्लास में. str हो सकते हैं, abc हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. That is a variable. So L1 is a variable here. और देखो third bracket में हम लोग list का values हम enter किया. Okay, so this is a list. Now in this list each and every values are integers, and obviously what I have told, it is not necessary that all the values must be of single data type or must be of numeric data type. It is not necessary. Anything we can store. We will see that type of examples also later on. तो ये हो गया list का declaration. Then हम लोग कल string का traversal सीखे थे. That is why I was saying that each and every class you should follow. तो सेम टाइप ऑफ ट्रेवर्सल है यहाँ पे. देखो जो कल के क्लास अटेंड किए हैं, सो यू सी द सेम टाइप ऑफ ट्रेवर्सल इज देयर. जिन लोगों ने स्ट्रिंग का क्लास मिस किया है, आज घर जाके स्ट्रिंग का वीडियो देखोगे. ओके ओके, देखो इट इज द लिस्ट ट्रेवर्सल. लिस्ट ट्रेवर्सल मतलब लिस्ट में कितना एलिमेंट्स है? इस लिस्ट में कितना एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है. स्ट्रिंग के ट्रेवर्सल में हमने क्या किया था? फॉर आई इन द नेम ऑफ द स्ट्रिंग करके एक एक कैरेक्टर हम प्रिंट कर सकते थे. ठीक है, यहाँ पे भी सिमिलर. फॉर आई इन L1, फॉर आई इन L1, आई विल कैरी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ L1. ठीक है, पहले आई का वैल्यू क्या होगा? इन द फर्स्ट इटरेशन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई? 1. In the second iteration what will be the value of I? 2. So after this loop what will be the output? 1 2 3 4 5 vertically, right? So let's see the output. See, okay. And then what is this concatenation? Concatenation also we had done in string. Plus use करके ही किए थे. We can do the same thing in list also. ठीक है, देखो यहाँ पे L1 ऑलरेडी एक लिस्ट है. 1 2 3 4 5. L2 इज अ लिस्ट. 6 7 8 है उसमें. अब L3 में हम क्या कर रहे हैं? L1 प्लस L2 कर रहे हैं. So we will see what is the value of L3. देखो, हाँ हाँ डाल रही हूँ. See,
कॉन्केटिनेटेड हो चुका है। L1 में 1 2 3 4 5, L2 में 6 7 8, सो द कॉन्केटिनेट। हाँ बताओ। लिस्ट है इसलिए, राइट। लिस्ट जब भी आएगा दिस विल कम इन थर्ड ब्रैकेट, ठीक है। अब तुम ये पूछ सकते हो कि पहले में क्यों नहीं आया, राइट। वी हैवंट प्रिंटेड द होल लिस्ट हियर। यहाँ पे हम लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम एलिमेंट वाइज प्रिंट किए थे, एक एक एलिमेंट निकाल के प्रिंट किया था। होल लिस्ट तो प्रिंट नहीं किया था ना पिछले बार। गॉट इट, ओके। ओके, कौन सा में 11 नहीं है, ये L1 प्लस L2 है। L1 is the name of the this list and L2 is name of this list. ये दोनों लिस्ट कॉन्कैटिनेट हो रहा है। L1 प्लस L2 गया है L3 में। हाँ, L1 प्लस L2 कर सकते, डायरेक्ट आता था, आ सकता था, बट कोई नया लिस्ट तुम्हारे मेमोरी में नहीं रहता जिसमें सारा वैल्यूज है। आई गॉट इट व्हाट यू आर टेलिंग, के प्रिंट में डायरेक्ट हम प्रिंट कर सकते हैं कॉन्कैटिनेटेड लिस्ट, लेकिन ये भी तो तुम्हारे जरूरत में आ सकता है कि यू नीड द कॉन्कैटिनेटेड लिस्ट टू स्टोर इनसाइड द मेमोरी, है ना। तो जब मेमोरी में स्टोर करना होगा तब यू हैव टू डू दिस वन। और अगर तुम्हें लगे कि वी डोंट नीड टू स्टोर इनसाइड द मेमोरी, वी ओनली नीड टू प्रिंट इट, ऑब्वियसली यू कैन राइट हियर L1 plus L2। गॉट योर आंसर, ओके। देन रिपीटेशन भी था स्ट्रिंग में। व्हाट वाज हैपनिंग इन रिपीटेशन? द स्ट्रिंग वाज गेटिंग रिपीटेड। 3 अगर रहता था तो 3 टाइम वो स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा था, यहाँ पे भी सेम होगा। नहीं, हैश का मतलब क्या है, हु आस्क्ड द क्वेश्चन? See the output, okay, the thing has been repeated and obviously a new string, a new list has been created for that, okay. List multiply by 3, you can write here variable name also। यहाँ पे मैंने जैसा एक स्ट्रिंग लिखा है, कांस्टेंट लिस्ट लिखा है, you can write here L1 into 3 also। हाँ, तुम कुछ पूछ रहे थे। That you have to write there, okay, okay। मेंबरशिप फंक्शन देखो कितना सिमिलरिटी है स्ट्रिंग के साथ। मेंबरशिप फंक्शन we had also learned in tomorrow's class, in yesterday's class, sorry। हाँ, तो मेंबरशिप फंक्शन में क्या था, क्या सीखे थे हम लोग? इन ऑपरेटर क्या कर रहा था, who will tell? yes, अगर है तो क्या होगा? अगर है तो if will work because it will return true, अगर नहीं है तो else part will work। तो यहाँ पे भी सिमिलर, ठीक है। if 4 in L1, अगर 4 L1 पे है then yes will be printed, अगर नहीं है तो no will be printed। L1 का वैल्यू क्या है, so what will be the output? yes, हाँ, लेकिन आउटपुट अलग होता है। फाइंड भी हम लोग किए थे ना कल के क्लास में, फाइंड फंक्शन, काउंट फंक्शन, ईच एंड एवरीवन इज एक्चुअली सर्चिंग, लेकिन जो आउटपुट वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है। कोई इंडेक्स रिटर्न करता है, कोई नहीं होने से -1 रिटर्न करता है, कोई नहीं होने से एरर रिटर्न करते हैं। ऑल ऑफ यू विल फाइंड देयर इन द वीडियो, ओके, गो थ्रू दैट, ओके। तो नॉट इन क्या करता है बताओ? इसी का उल्टा है ना। अगर 4 नहीं है L1 में then it will print yes, अगर है तो it will print no, so in this case what will be the output? No will be the output, okay, okay। Then len function,
लेन फंक्शन, दिस ऑल्सो वी हैव डन। क्या करता है? सो व्हाट विल बी द लेंथ हियर? L1 का वैल्यू देखो 5 विल बी द लेंथ। ये सब सिंटैक्सेस याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में जब देगा कोई एलियन जीटीएच दे देगा, कोई एलियन दे देगा ब्रैकेट नहीं देगा, ठीक है? सो यू हैव टू रिमेम्बर द सिंटैक्सेस। How many number of elements are there in the list? The length will print that. Okay. यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, so the output is 5. Then this thing is very interesting. This is actually is known as typecasting. You know, I have taught typecasting in the input statement. Typecasting किसको बोलते हैं? जब हम लोग एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। एक मिनट, तो इंट में, इनपुट में टाइपकास्टिंग कैसे काम करता है बताओ तो, किसको याद है? इनपुट स्टेटमेंट में हम जब इंट विद इन ब्रैकेट इनपुट लिखते हैं, दिस इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ टाइपकास्टिंग। हाउ इट वर्क्स? हम लोग जब इंटीजर डेटा इनपुट लेते हैं पाइथन में, तो क्या लिखते हैं हम लोग? इंट देन विद इन ब्रैकेट देन इनपुट देन विद इन ब्रैकेट, राइट? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हाउ इट इज वर्किंग, हाउ द टाइपकास्टिंग इज वर्किंग देयर? टाइपकास्टिंग मतलब क्या बोली मैं अभी अभी? एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप में चेंजिंग। तो इनपुट के टाइम कौन सी डेटा टाइप से कौन सी डेटा टाइप में चेंज हो रहा है? स्ट्रिंग से इंटीजर, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इनपुट इज स्ट्रिंग इन पाइथन। अब उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बाहर इंट दे रहे हैं। सो दैट इज अ टाइपकास्टिंग एंड दैट इज वन एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग का मतलब क्या है? when you are saying, when you are writing that ये डेटा टाइप से ये डेटा टाइप में कन्वर्ट करो, इंट तुम ब्रैकेट में दे रहे हो ना, मतलब यू आर राइटिंग दैट, दिस इज नोन एज एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। तो यहाँ पे भी एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग हो रहा है। देखो, लिस्ट ये एक फंक्शन है, ठीक है? उसके ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है आर्गुमेंट में क्या है? विद इन डबल कोट में एबीसी है, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। फंक्शन के अंदर जो वैल्यू तुम पास करते हो, दिस इज नोन एज आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट में क्या है यहाँ पे? विद इन डबल कोट एबीसी। तो इसका डेटा टाइप क्या है? ये जो एबीसी है इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। और हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? लिस्ट में। देयरफॉर इट इज वर्किंग एज टाइपकास्टिंग, ठीक है? तो ये एबीसी क्या हो जाएगा? लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कितना इजीली हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सी द आउटपुट। ठीक है, एबीसी था स्ट्रिंग, ईच एंड एवरी वैल्यू अलग अलग होके कहां पे चला गया? लिस्ट हो गया। सो द स्ट्रिंग इज कन्वर्टेड टू लिस्ट। अच्छा, लिस्ट से अगर स्ट्रिंग जाना होगा ऐसे ही करेंगे, लिस्ट के बदले में स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक है? ओके, नाउ अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन और एक फंक्शन होता है एक्सटेंड। अगर यहाँ पे नहीं है तो मैं अलग से एक्सटेंड फंक्शन तुम लोगों को करवा दूंगी, अभी अपेंड वाला कर लो। देखो how this append function is working, what is the meaning of this append function? append function क्या करता है? लास्ट में एक वैल्यू जोड़ देता है, लास्ट में एक वैल्यू जोड़ देता है। तो यहाँ पे देखो एप्पल बनाना चेरी है, ठीक है? वी आर अपेंडिंग ऑरेंज, तो फ्रूट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? फ्रूट्स का फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा? एप्पल बनाना चेरी ऑरेंज। ओके, सॉरी,
ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा और चेंज कर रही हूँ इसमें, because I am giving here data type is given here as a string. ऑरेंज का डेटा टाइप क्या है, इसलिए डबल कोट में है, या फिर सिंगल कोट भी तुम दे सकते थे, तब भी वो स्ट्रिंग ही है ना, एक एक एलिमेंट है। देखो लिस्ट का एक एलिमेंट, पहले जब 1 2 3 4 5 हो रहा था तब लिस्ट का जो एक एलिमेंट है, पूरा तो लिस्ट है, लिस्ट का एक एक एलिमेंट का अलग अलग डेटा टाइप होता है, ठीक है, एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट वाज हैविंग न्यूमेरिक डेटा टाइप देन, जब डबल कोट नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिस्ट का एक एक एलिमेंट है स्ट्रिंग, तो वो डबल कोट में आएगा ना, या फिर सिंगल कोट में, ठीक। हाँ, अब देखो, हाँ हाँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टाइप कास्टिंग नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, ना ना, स्ट्रिंग लिस्ट में चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिस्ट में ऐड हो रहा है, वही वो पूछा। द डेटा टाइप ऑफ ऑरेंज इज नॉट बीइंग चेंज्ड हियर, ऑरेंज स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ही है, वो जब लिस्ट में ऐड हो गया तब भी वो स्ट्रिंग है। देखो ऐड होने के बाद जब आउटपुट में दिखा रहा है तब कैसे दिखा रहा है, देखो इट इज अ स्ट्रिंग ना, ऑरेंज तो खुद लिस्ट नहीं बन गया, ऑरेंज खुद लिस्ट बन गया, अगर ऑरेंज लिस्ट बनता तो क्या होता, ओ एक वेरिएबल होता, आर एक, ओ एक वैल्यू होता, आर एक वैल्यू होता, ए एक वैल्यू होता, जैसे कि पिछले टाइम हो रहा था एबीसी में, ए एक वैल्यू था, बी एक वैल्यू था, सी अलग वैल्यू था, यहाँ पे तो ऑरेंज एक साथ है एंड इट इज स्ट्रिंग, इट इज ओनली एडेड एज एन एलिमेंट ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग नहीं हो रहा है। मैं और एक चीज दिखाना चाहती हूँ अपेंड में, देखो अगर मैं यहाँ पे, ये तो हो गया स्ट्रिंग ही था सारे एलिमेंट्स, तो मैंने और एक स्ट्रिंग ही डाला है, तुम जिसको टाइप कास्ट करोगे वही चेंज होगा, ठीक है, ओके। तो मैं एक और चीज दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे, देखो अगर मैं ऑरेंज कॉमा, यहाँ पे और एक फ्रूट का नाम बताओ, मैंगो, मैंगो ही तो नहीं है, ओके, तो दोनों दे रही हूँ, देखो यहाँ का, देखो थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हाँ कोई भी कोट यूज कर सकते हो, डबल कोट और सिंगल कोट में कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान से देखो व्हाट आई हैव डन, पहले वन सिंगल वैल्यू था, आई वाज अपेंडिंग, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पूरा एक लिस्ट है, ऑरेंज कॉमा मैंगो इज अ लिस्ट एक्चुअली बिकॉज इट हैज बीन रिटन इन थर्ड ब्रैकेट, तो पूरा एक साथ अपेंड कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको क्यों दिखा रही हूँ, आउटपुट देखने के बाद समझ में आएगा, सी हियर, ये पूरा एज अ लिस्ट ही ऐड हो गया है, ठीक है, मतलब अपेंड क्या काम करता है, ओनली अ सिंगल वैल्यू इट विल ऐड, तुम एक लिस्ट दे दो 10 एलिमेंट का, वो भी एज अ सिंगल वैल्यू लेके ही वो ऐड करेगा, जो देगा देंगे वो वैसे ही डाल देगा, नहीं सिंगल कोट तो इसके अंदर है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट, it is not necessary that you should give single quote, ठीक, नो प्रॉब्लम, कुछ भी वैल्यू तुम डालो, मेरा बोलने का मतलब ये है कि whatever I will give it will treat it as a single value, append क्या करेगा, टोटल जो लिस्ट था उसके एंड में एज अ सिंगल वैल्यू इट विल पुश इट, अंडरस्टूड एवरीबॉडी, now what will happen if we write here extend का, आई थिंक दिस इज द स्पेलिंग, ब्लैंक हो गया, एक्सटेंड का स्पेलिंग क्या था, कलर चेंज हो रहा है, नहीं कलर चेंज नहीं हो रहा है, यही होगा शायद एक्सटेंड का,
सी द डिफरेंस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड? बताओ. अलग अलग वेरिएबल लेके अलग अलग वैल्यू जैसा वो अपेंड कर दिया. वहां पे 3 वैल्यू दिया था, वो एंड में ही अपेंड करेगा लेकिन अलग अलग वैल्यू जैसा अपेंड करेगा. अपेंड क्या कर रहा था? सिंगल वैल्यू लेके एज अ लीस्ट था, वो लीस्ट जैसा ही जोड़ दिया एंड पे. और यहाँ पे क्या किया? उस लिस्ट को ही वो एक्सटेंड कर दिया. एंड नाउ द लेंथ ऑफ दिस लिस्ट इज 1 2 3 4 5 6. अब और एक चीज मैं दिखा रही हूँ, देखो. अपेंड और लिस्ट को अलग कर देती हूँ. नो टॉकिंग, ध्यान से सुनो, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है. डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड. देखो यहाँ पे मैं लेंथ अगर प्रिंट करूं, बताओ तो ये वाला फ्रूट्स का लेंथ कितना होगा और ये वाला फ्रूट्स का लेंथ कितना होगा? इसमें 4 प्रिंट होना चाहिए और इसमें देखते हैं. गॉट द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड? सबको क्लियर हो गया? ओके. नाउ इंसर्ट. इंसर्ट फंक्शन क्या करता है? पर्टिकुलर एक इंडेक्स में कोई एक वैल्यू वो इंसर्ट करता है. पर्टिकुलर एक इंडेक्स में, इंडेक्स कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है. तो इंसर्ट 1 कॉमा ऑरेंज, तो इसका फाइनल वैल्यू क्या होगा? ऑरेंज का इंडेक्स क्या है? कौन सी पोजीशन में ऑरेंज बैठेगा? ऑरेंज अगर पहले बैठेगा तो उसका इंडेक्स 0 हो जाएगा. 0 से शुरू होता है. एप्पल, ऑरेंज, बनाना, चेरी. राइट. ठीक है. जो इंडेक्स दोगे उस इंडेक्स में वो इंसर्ट करेगा. काउंट फंक्शन भी हम सीखे थे कल स्ट्रिंग में. काउंट फंक्शन क्या करता है? कितना बढ़ाएगा. और स्ट्रिंग के तरह, आई एम नॉट रिपीटिंग दिस, स्ट्रिंग के तरह जैसे हम सेकंड वैल्यू देके वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पोजीशन. 3 आर्गुमेंट दिखाई थी मैं स्ट्रिंग में. 3 आर्गुमेंट, स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू बोथ. ठीक है. हाँ. तो 2 आर्गुमेंट, 3 आर्गुमेंट, सब कुछ उस स्ट्रिंग वाले जो वीडियो है उसमें बोला गया है. ऑल द थिंग्स विल वर्क हियर आल्सो. ठीक है. यहाँ पे जो काउंट है, इट इज सर्चिंग इन द होल लिस्ट. इट इज सर्चिंग इन द होल लिस्ट. ठीक है. अगर तुम कहीं बीच में से सर्च करना चाहते हो, अगर तुम पर्टिकुलर कोई पोजीशन में सर्च करना चाहते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड दैट इज सिमिलर विथ स्ट्रिंग. ठीक है. तो यहाँ का आउटपुट क्या होगा बताओ? 2. ओके. इंडेक्स फंक्शन भी सेम है. इंडेक्स फंक्शन इज ऑल्सो सेम. इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा? पर्टिकुलर कोई पोजीशन का इंडेक्स, वैल्यू का इंडेक्स दिखाएगा. 32 का इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3. 0 से शुरू होता है इंडेक्स. ठीक है. सो 3 विल बी द आउटपुट. ठीक है.
नहीं, दोनों नहीं होगा, ओनली द फर्स्ट जो मिलता है उसको उसी का इंडेक्स दिखाता है, ठीक है। ओके, रिमूव फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्वेश्चन आता है रिमूव फंक्शन से। हाउ यू कैन रिमूव अ पर्टिकुलर वैल्यू और हाउ यू कैन डिलीट हो सकता है, मतलब कोई भी वर्ड दे देते हो, आस्क्स यू द फंक्शन, तो रिमूव फंक्शन इज यूज्ड टू डिलीट अ पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट। तो एनिमल्स डॉट रिमूव रैबिट जब करोगे, सो व्हाट विल बी द आउटपुट, कैट, डॉग एंड गिनी पिग। ओके, गिनी पिग का स्पेलिंग वही होता है, गिनी पिग का स्पेलिंग वही होता है। ओके, कैट, डॉग एंड गिनी पिग, रैबिट इज डिलीटेड। Okay, pop function is also very important. Pop always pops up the first value from the list, and it is also actually very important thing because if you are learning further, पहले तो class 12th में था भी वो सिलेबस में दोनों चीजें थी, आप शायद एक उठा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, एक डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक एंड क्यू, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर तुम पढ़ोगे, एंड पॉप इज रिलेटेड टू स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, बाद में पढ़ोगे तुम लोग, एंड दैट रिमूव्स द एलिमेंट ऑलवेज फ्रॉम द पर्टिकुलर पोजीशन, फ्रॉम द स्टार्टिंग, और हेड बोलते हैं हम लोग उससे, हेड से रिमूव करते हैं, ठीक है। कल का भी तो प्रोग्राम भेजा हुआ है, प्रोग्राम भी भेजा हुआ है, कोडिंग, कोडिंग भी है, हाँ क्लासरूम में देखो कोडिंग है, देखना होगा ना, जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, यू आर नॉट फॉलोइंग। क्लासरूम में देखो, वीडियो के लिंक में भी है, कोडिंग का एक लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे, और क्लासरूम में भी वो कोडिंग दिया हुआ है, क्लासरूम में जहाँ पे वीडियो शेयर किया है ना, उसमें भी कोडिंग दिया हुआ, ठीक है। ओके, देखो बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, सो व्हाट विल बी द आउटपुट, हेड मतलब यहाँ से, यहाँ से एंड से, एंड से, नहीं नहीं सॉरी, कहाँ पे था मैंने, हाँ यहाँ पे देखो लैंग्वेज पॉप 3 दिया हुआ है, इसीलिए 0 1 2 3 फ्रेंच रिमूव हुआ है, हाँ मैं बोल रही हूँ यहाँ पे आर्गुमेंट था, मैं आर्गुमेंट रिमूव करके बोल रही हूँ, मैं आर्गुमेंट था, ध्यान नहीं दिया। अब देखो, जब कुछ नहीं रहेगा हेड से, हेड मतलब एकदम लास्ट में जो होता है उसको हेड बोलते हैं। अब तुम लोग बताओगे उसको हेड क्यों, हेड तो हम शुरू से, शुरू का बोलते हैं, एक्चुअली इट इज अ कन्वेंशनल लैंग्वेज फॉर हैंडलिंग द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, उसको हम हेड या फिर टॉप बोलते हैं। जब तुम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर सीखोगे तब देखोगे, जब जहां से डिलीट होता है, जहां से पॉप फंक्शन रिमूव करता है, उसको हम टॉप या फिर हेड बोलते हैं। एक्चुअली हम चीज को ऐसे देखते हैं, वो ऐसे रहता है ना, यू आर व्यूइंग दिस इन दिस वे एंड वी स्टडी दैट इन दिस वे, देयरफॉर वी टेल इट टॉप या फिर हेड। ओके, so if you are not giving any argument, so the pop will remove the thing from the head, head मतलब ऐसे, एंड भी याद रख सकते हो, या फिर यू हैव टू round it in this way. Okay, so and if you are giving the particular index, then that particular index value will be removed. Now अभी 3 दिया था, तो Python, Java, C++ and C will be the output. नहीं, French नहीं होगा, I have written here pop 3, so 0 1 2 3 French will be removed. ठीक है, हाँ बताओ क्या पूछ रहे थे, बताओ। बहुत डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, हाँ बताओ।
We are removing according to a value from the remove function. वैल्यू देके रिमूव कर रहे हैं और पॉप में इंडेक्स देके रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 पॉप 5 डालोगे तो कुछ भी रिमूव नहीं होगा। Pop index out of range. Index out of range is an exception that will be given. Okay. Okay. Reverse function. Reverse function क्या करेगा? Obviously will reverse the list. Okay. ठीक है, देखो रिवर्स कर दिया लिस्ट को। सारा याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा वो भी मैंने बताया था कल के क्लास में। क्यों? Because all these functions will be given in the code snippet. Some are obviously not all. Some of these functions will be given in a code snippet and you will be asked to give the output. तो अगर तुम नहीं जानोगे कि कौन सी फंक्शन का क्या आउटपुट है तो कैसे लिखोगे? ठीक है। और ऐसे भी एमसीक्यू में आ ही सकता है, पर्टिकुलर अपेंड और एक्सटेंड के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट अभी भी, मतलब सीबीएसई से डिक्लेरेशन नहीं है। 2 क्लासेस है। कहाँ पे जाए? एक मिनट रुको, अभी भी 3-4 फंक्शन, थोड़ा जल्दी मैं इसको खत्म कर देती हूँ तो इसका हो जाएगा। थोड़ा 1 मिनट रुको। सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा? सॉर्ट फंक्शन विल सॉर्ट इट अल्फाबेटिकली, ठीक है। और रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू जब करेगा तो उसको उल्टा, इन द डिसेंडिंग वे। यहाँ पे अगर रिवर्स इक्वल्स टू कुछ नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट इट विल सॉर्ट इट इन असेंडिंग वे A to Z, और रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू करोगे तो इट विल सॉर्ट इट इन डिसेंडिंग Z to A। ओके, देन मीन मैक्स, ये दो जो फंक्शन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन क्या करेगा? मिनिमम वैल्यू देगा। मैक्स क्या करेगा? मैक्सिमम वैल्यू देगा। सम क्या करेगा? ऑल द एलिमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन द लिस्ट, सबका टोटल करके जो सम होता है द सम विल बी रिटर्न्ड। ओके, दो मैक्सिमम वैल्यू मीन सेम मैक्सिमम वैल्यू, दो मैक्सिमम अलग अलग कैसे वैल्यू हो सकता है? वन टाइम विल बी रिटर्न। अगर 99 5 बार भी है तो 99 ही विल बी रिटर्न सिंगल टाइम। ठीक है, ओके। स्ट्रिंग स्लाइसिंग मैं छोड़ देती हूँ बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। नेक्स्ट क्लास में मैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग बताऊंगी। यहाँ तक हो गया, शाम तक आई थिंक। सॉरी, लीस्ट स्लाइसिंग। हाँ, लीस्ट स्लाइसिंग और स्ट्रिंग स्लाइसिंग बोथ ऑफ देम वर्क इन द सेम वे। एक करोगे तो दोना हो जाएगा, एक ही जैसा ही है। ओनली द मैथमेटिकल फंक्शंस आर नॉट, मैक्स मीन these functions are not available in string, otherwise everything are same. Okay, so this video and the code will also be given in the classroom. बाद में भी तुम लोगों का काम आएगा। और कॉपी में कैसे लिखना है मैंने कैसे बताया था? You have to write down the code and by putting hash you have to write the output beside that. ठीक है, ये कॉपी तुम लोगों को जमा करना पड़ेगा 4 दिसंबर तक, 4 जनवरी तक, सॉरी 4 जनवरी तक।